Harishchandragarh trek is one of the most challenging treks in the Western Ghats of Maharashtra. It is a hill fort in the Ahmednagar district situated in the Malshej Ghat. It climbs up to an altitude of 4,670 feet. This trek offers a variety of adventures as well as full of majestic views. During this trek, we have learned several things from our trek guides, like how to mark routes, how to do rock climbing while trekking, and so on. So stay tuned till the end so you will get to know everything. Now listen to our trek guides. और ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली आप जब भी बारिश में ट्रेक करते हो तो फुल स्लीव्स फुल पैंट ही पहना करो, बिकॉज ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे स्किन पे होने वाले इंसेक्ट्स वगैरह के ज़्यादा खतरा होता है, तो वो सब अवॉइड करने के लिए हम लोग मोस्टली बोलते हैं। अभी मुंह तो नहीं ढक सकते वरना वो भी बोल सकते थे, तो इसलिए हाथ पैर पूरी तरह ढके हुए चाहिए। और आई होप सब लोग ने अच्छे शूज पहन के आए होंगे, वो फैशन विशन वाला कोई नहीं पहन के आया। सब लोगों के पास टॉर्च, हाँ टॉर्च, मोबाइल वाला टॉर्च वाला मोबाइल ही क्या तो नेक्स्ट टाइम ये भी मत किया करो मोबाइल। We started our journey from Pune by bus at 11:30 p.m. on 7th August 2021. It took more than 3 hours to reach the Khireshwar village, which was the base of this trek. Then we had our breakfast at 3:37 a.m. After that, we started our trek at 4:52 a.m. Yeah. How was that? It was really it was enduring. Tough. Yeah. After crossing a dense forest, we thought it was tough. But believe me, it was not even a peanut in front of the whole trek. At that moment, our night trek was over and the dawn was breaking. কত পাখি ডাকছে না? This is the most lonely route, but Panchana is more. Oh, is it? This Nadichiwat, which is most dangerous route. Okay. Not lengthy, but only and only climbing. पत्थर जो है ये पूरे नीचे तक डीप में था, तो यहाँ पे ये और वो मूर्ति। This point is called तोलारखिंड। यहाँ से 3 रूट है, हिरेश्वर, ऊपर जाने के लिए हरिश्चंद्रगढ़, यहाँ से नीचे जाने के लिए गांव, जो नेक्स्ट रूट है हमारा। मोस्टली यहाँ से कोई करता नहीं, दिस इज टू ऑफ बिट। अच्छा, तो यहाँ से हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग वे स्टार्ट होता है, ठीक है? अच्छा, लेट्स स्टार्ट। है उल्टा, पीछे से पुश। हाँ, यस, आराम से, इतना जोर से नहीं, हाँ, जस्ट सपोर्ट। सुनो, उसको हाथ नहीं देना है, रिस्क देना है उसको, सुनो। Here we met with some amazing people that you can see now. Yes, sir. Please follow this Kaka for more relational tips. Yeah. How to hold hands. About 70 age. No. At which situation how to hold hands? Please reach KK sir. Sometimes we had to climb almost 80-degree inclined rocks, which was too difficult for us. So this trek is not for beginners. In this monsoon season, the rocks are too slippery, which makes the trek arduous.
जाना होगा क्या? यस। माय गॉड, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा इधर से। पैराग्लाइडिंग करके जाएंगे। हाँ। प्रेम भाई करते जाना पड़ेगा। प्रेम भाई, राम 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 राम, मरा मरा मरा। कभी भी भगवान भरोसा हो सकते हैं। ग्रिप के लिए है, ताकि आप उसकी उंगली डाल के ऊपर चढ़ सको। ये वाले बोर्ड। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप ये हुआ माउंटेन्स एंड जंगल्स कीप इन माइंड, मोस्टली लोग ये बांधते हैं। अच्छा। मेक श्योर, और नेक्स्ट टाइम आप भी कहीं पे गए, इफ यू गेट टाइम, तो आप ऐसे रिबन्स कैरी करो, और हर एक 1 किलोमीटर, हाफ एन किलोमीटर पे वी कैन टाई रिबन, सो अदर्स कैन हेल्प इट, एटलीस्ट आवर टीम मेंबर्स। ओके। यहाँ से हमें ऐसे साइड से निकल जाए। फिर से हाँ, नहीं ये अभी इजी है, इतना ये नहीं। बेटा इतना इजी। अरे आई थिंक नीचे जाने के टाइम पे सीधा ऊपर पहुंचे। म्हणून तिथून येत नव्हतो तू आला। छोटे केव्स बनाए जाते हैं। एंड सी, दिस इज कारवी, दिस इज कारवी, दिस इज कारवी। 7 साल के बाद उसको फ्लावर आता है। आफ्टर 7 years कितने बार बताएंगे? नहीं जब तक ठीक से आया। उधर के आगे जीते। यस। সেটাই ভয় লাগছে আমার। After a strenuous journey, we got a plain land where we had a cup of tea, experienced a breathtaking view, and then resumed our trek. The rocky surface was too slippery and was full of moss, so it was too difficult for us to take a single step. Finally, we came across a stunning meadowland which was covered by different types of flowers. Though I was too tired at the time, the water stream made me happy.
बेबी नहीं आते, बेबी स्टेप डालते। आपके मन में जो बेबी है वो बड़ा एग्रेसिव बेबी है। By hearing this sound, we understood that we are nearby the Harishchandreshwar temple. So that's the temple. Shantika is proceeding towards that. Okay. Yes. भाई चालू है क्या? Yes. बोलो भाई लोग, कैसा लगा आपको ट्रैक? एकदम मस्त भैया, मजा आएगा। भाई पैसा देख के भी मेहनत करना पड़ रहा है। इसलिए तो आए हैं। मेहनत करने के लिए ही पैसा दिया है, हाँ। है कि नहीं? बहुत चलना पड़ा बस, हाँ। पैर भी हाथ में आ गया। क्या बात कर रहा भाई, सच्ची में तेरे पैर हाथ में आए भाई। तो यहाँ पे साधु संत जो पंढरपुर की यात्रा होती है वहाँ से भी जो आते हैं वो लोग भी, ये जो पुष्करणी तालाब है जो आप लोग बैठे थे, ये पुष्करणी तालाब है, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है कि लोग नहाए हुए वगैरह। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका जल जो है शिव अभिषेक या फिर जो भी भगवान के कामों के लिए वो किया जाता था, इसलिए इसका निर्माण किया गया। और पुष्करणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो लोटस होते हैं ना, लोटस के फ्लावर्स उगाने के लिए छोड़ दिए जाते थे, अलग अलग तरह के फिशेस उसमें होते थे, तो ताकि वो पानी को स्वच्छ रखे, क्योंकि वो पानी जमा रहता है पूरे साल, इसलिए उसको पुष्करणी तालाब ऐसा कहा जाता है। दर्शन ले लेते हैं। हाँ। इसके अंदर और भी एक विठ्ठल और रुक्मणी जी का मूर्ति है, वो देख लेते हैं। जहाँ पे ऋषि चांगदेव बैठते थे वो भी देख लेते हैं अंदर, ठीक है। हाँ। रह गए हैं। और ये मूर्तियों का अगर कार्बन डेटिंग हुआ तो यू विल फाइंड कि इस एक एक मूर्ति का कीमत ना करोड़ों के ऊपर होगा। बट यहाँ पे देखो कैसे पड़े हुए, नो म्यूजियम नथिंग। अच्छा, तो अभी उसका कुछ कर तो नहीं सकते, बिकॉज वी ऑल्सो कांट टच, बिकॉज दिस कम्स अंडर गो। इसके नीचे जो मैंने आपको चांगदेव संत बताया ना, उसका रूट वहां से देखो साइड से, वो ये बेसमेंट है तलघर, यहाँ से उतरोगे आप और उसका सेकंड टोक वहां से, मतलब अंदर से जाके वहां से आप निकल भी सकते हो। तो अच्छा। दो साइड से उसके रूट है, बट अभी पानी बारिश की वजह से जम गया है, इसलिए ये है। नहीं तो जाते हैं क्या? जा सकते लोग, अंदर जा सकते हैं हम लोग। अच्छा। अगर आप गर्मी में आओगे ना तो आप नीचे तक जा सकते हो, बट यहाँ पे 12 महीने पानी होता है बेसिकली, तो वो उसके लिए। और ये जो है, ये विठ्ठल रुक्मणी जी है जो पंढरपुर के बहुत फेमस है, उनकी मूर्ति है। अच्छा। और ये जो पूरा टेम्पल है ना, ये पूरा टेम्पल एक पत्थर से, मतलब एक पत्थर से बनाया गया है। एक पत्थर ये से ऐसे नहीं कि अलग अलग पार्ट्स रखे गए हैं। ये पूरा टेम्पल मतलब कैसा, एक रॉक था बड़ा स्ट्रक्चर, उसको कार्व कर करके लोग नीचे तक आए हैं और इसको एक पूरे पत्थर से बनाया गया। मतलब कि अजंता इलोरा जैसा। एग्जैक्टली। और इसका अगर आप पौराणिक महत्व, मतलब बहुत हजारों साल पहले जाओगे तो देयर इज मत्स्य पुराण एंड शिव पुराण। मत्स्य पुराण और शिव पुराण है, उसमें हरिश्चंद्रगढ़ या फिर हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर का उल्लेख है, और वहाँ पे जो साधु तपस्वी लोग आते हैं उसका भी उल्लेख है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये 4000 से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। ये मंदिर के अंदर शिवलिंग ऐसे लाकर बिठाया हुआ नहीं है। अच्छा। वो जो पत्थर है उसी को ये करके बनाया हुआ है। वो जो स्वयंभू शिव जी बोला जाता है ना, तो ये वो है, और वो उसी पत्थर को ये करके बनाया गया है, उनको अलग से स्थापित नहीं किया गया। ठीक है। केव्स ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ वो 4 पिलर्स ही सपोर्ट है उसके। अच्छा। तो ऐसा माना जाता है कि वो 4 पिलर 4 युग है, मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो जैसे 3 युग खत्म हो गए तो उसके 3 जो पिलर्स है वो पूरी तरह नहीं, एक पूरी तरह खत्म हो गया है, और एक आधा खत्म, 25% खत्म हुआ है, एक 50%, और एक पूरा 100% जॉइंट है। तो ऐसा लोगों का कहना है कि जिस दिन वो भी पिलर उसका जॉइंट खत्म हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी खत्म। As the lockdown situation is going on, police came to our path and restricted our journey towards Konkankara, which is the most beautiful place in this Harishchandragarh. After knowing all the mesmerizing stories of this temple, we are all set to go back by following the same route. Though we couldn't be able to go to Konkankara, we don't have any regret, because this adventurous trek gave us the fulfillment.
So we have crossed this hill vertically, almost vertically. We climbed and we came down. So it's an amazing experience. So Shantika's legs are shivering. Now she is not being able to find any grip or any strength in her legs. So We are unable to walk properly through this jungle. At last, we reached the Khireshwar village at 5 p.m. So these three people are pretty enthusiastic with our vlogging. Okay, so yeah, they have asked at least twice that several questions about our vlogging. Waiting for bus to go back to Pune. Finally, I want to thank all of our guides who helped us or guided us immensely. Without that, it was not possible for us to come back home safely. Thank you so much.